Good evening. Just put in chat box once again whether I'm audible or not. Okay. Yes. Okay. We'll start. See, today we have two parts of lecture. Okay. One part is, as I previously suggested, one student will elaborate on one constellation which is given by him. Second lecture is obviously some part will be covered up by me. And then we have today again very two important covered. One is about uh, our today's celestial event, and other is about one constellation which we will be covering. One small problem which I put up to you on WhatsApp, that we have some adjacent to us, there is some marriage ceremony initiation. 3-4 दिन का रिचुअल रहता है ना, तो आज कुछ उनका शुरुआत वाला दिन है, तो शायद स्पीकर चालू हो जाएगा तो मेरा यहाँ का सिस्टम बंद हो जाएगा क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा आएगा. दे आर जस्ट एडजस्टेड टू अस. नाउ लेट्स गेट इनटू द लेक्चर. So this is our first slide. What you can see, this is acknowledgement that we take everything from internet. Lecture number 29, and this is what we are going to cover. Cancer Kirk constellation will be covered by Shlok. He will be starting around 9:30 or so. So half an hour I'll be covering one constellation called Vasuki, that is Hydra, and then I will be covering in-depth detail about this particular constellation, and then we will going into the general astro topic, that is today's celestial event. So instead of going late into today's celestial event, I thought that let's get into it immediately. ये है आज का सुपर ब्लड मून वॉट एवर यू से. तो चलो आप लोगों का थोड़ा टेस्ट बता दो भाई, ये क्या है सुपर ब्लड मून वगैरह. किसी को तो बताना ही होगा. माइक ऑन करो. Sir, may I say? हु इज दिस? Sir Shlok. हाँ सॉरी. अरे मेरा एक ही सिस्टम पे रहता हूँ ना, तो मुझे एक बार पीपीटी में चला गया तो मुझे कोई दिखता नहीं. आप टेंशन में मत आ जाओ. तो इट इज श्लोक, सो यू आर नॉट सपोज टू से एनीथिंग. आप माइक बंद करो. उसका कारण भी है, सब जवाब तुम ही देते हो, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. ओके. कुछ जवाब सबको भी देने चाहिए. तो भाई आज से ऐसा ये जो लिखा है मैंने सुपर ब्लड मून, वो क्या है? कोई तो माइक ऑन करो अपार्ट फ्रॉम श्लोक. सबने तो पैसे दिए है ना, तो सबको मेहनत तो करनी पड़ेगी. चलो बोलो जल्दी. सर हेमंत कितने लोग हैं यहाँ पे? सर बोलिए प्लीज. It's a super because it is the closest to the Earth in the elliptical orbit, and it's a full moon, so therefore it's called super moon. And blood moon, Okay. I think, is because of the color of the pinkish color of the moon. Okay. Why pinkish color? I don't know. Okay, great. Shlok, now you can turn on your mic and tell me why it is blood color, it is a red color, it is a rosy pink color, or it is a pink color, as Dr. Pikle said. Sir, actually, it is. It depends on the intensity of the blood moon. Sometimes it becomes red, or sometimes if it's at a distance, then it may appear as a darkish pink. Okay, why? Sir, this is commonly due to the intensity intensity of the blood moon when we see it. Why you see white blood moon instead of white moon? Normally you see. Okay, Sir, I'm not able to remember it right now. Okay, that is what the right answer. घुमाना फिराना बहुत ही गलत एटीट्यूड है जो यंगर जनरेशन में है. तो नाउ कम टू द आंसर. सी, जैसे पिकड़े सर ने कवर अप किया, पहले हम उसको शुरू करते हैं. सी, आज जो हम वेडनेसडे 26 मई में खड़े हैं, तो आज सुपर मून है, या दैट इज ओके, बट यू मे बी रिमेम्बरिंग मैंने लास्ट 26 को या तभी एक फुल मून था, वहां भी मैंने सुपर मून की बात की. अंदर एक मिनट, अभी कोई तो एंट्री कर रहा है. मैं एक ही सिस्टम में, एक मिनट, अभिजीत सकपाल, लोग भी ना. ठीक है. तो एक ही चीज है कि पिछला सुपर मून था, उसके कंपैरिजन में आज का सुपर मून 0.04% बड़ा है. तो कितना बड़ा दिखता है सुपर मून, जब जैसे पिकड़े सर ने बोला कि एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो सबसे करीब आता है. तो सबसे करीब वाला डिस्टेंस
सबसे दूर वाला डिस्टेंस क्या है वो देखना पड़ेगा। तो सबसे करीब वाला डिस्टेंस है तकरीबन 3,60,000 और सबसे दूर वाला तकरीबन 4,05,000। तो ये जो 3,60,000 से 4,05,000 का डिस्टेंस है, इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के पेरिजी और अपोजी, मतलब सबसे करीब और सबसे दूर वाले डिस्टेंस में ये मून घूमता रहता है। देन ही सेड नेक्स्ट, इट इज अ फुल मून। ऑब्वियसली फुल मून पे ही कुछ तो होता है, दैट इज कॉल्ड इक्लिप्स, ग्रहण। तो आज इक्लिप्स है, ओके। आज इक्लिप्स होने के कारण हमको मून जो है वो थोड़ा नहीं दिखेगा, पूरा नहीं दिखेगा, या इस तरीके का कुछ होगा। किसी को बोलेंगे हम पार्शियल लूनार इक्लिप्स, दूसरे को हम बोलेंगे टोटल लूनार इक्लिप्स। अभी एस्ट्रोनॉमी का कोर्स कर रहे हैं आप लोग, ऑलमोस्ट 3-4 महीना हो गया। इफ यू डोंट पुट इन इंटरनेट डेली व्हाट इज टुडेज इंपॉर्टेंट सेलेस्टियल इवेंट, तो क्या क्लास का फायदा है? ओके, क्लास का मतलब ये नहीं कि पैसे देना, क्लास का मतलब है डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, डेडिकेशन। जब मैं बोलता हूँ कि किसी को पैसे देने हैं क्योंकि डिसिप्लिन, सिंसियरिटी, डेडिकेशन आएगा, तो जिनको दुनियादारी के बारे में कुछ भी पता नहीं वो लोग भी ऐसा बोलते हैं कि आप पैसे ले रहे हैं। अभी कौन 100 लेक्चर्स का 500 रुपए लेता है जो अपनी गेट के क्लास की फीस है? कौन एस्ट्रोनॉमी के 50 क्लास का 3,000 रुपया लेता है जो अपनी एस्ट्रोनॉमी के क्लास की फीस है, और आपने अब तक जो सीखा है और डेली 1 घंटा भी डालते तो आपका नॉलेज इतना होता कि आप किसी भी कहीं भी जाके कम से कम 5 घंटे का लेक्चर ले पाते। तो कुछ चीजें जो आप लोगों को सिंसियर बोलता हूँ इसलिए फॉलो करनी है क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, वो आप करते नहीं तो थोड़ा बुरा लगता है। सो व्हेन आई से सुपर मून, इट्स अ क्लोजर, हाउ क्लोजर? देन इट्स अराउंड 3,60,000 kilometers. Today's is little bit closer compared to the previous month's one, and the now looking at it, it will look 14% bigger. ऐसे देख के तो नहीं पता चलेगा, बट एक 14% ये बड़ा होगा। 14% बड़ा दिखने के कारण अपेरेंटली वो ब्राइट भी होगा, दिखेगा, दैट इज 30% ब्राइटर। ओके, अभी आप बोलेंगे फिर मैं देख रहा हूँ तो मुझे क्यों नहीं बड़ा लग रहा? इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग चीज है, ये भी एक फेनोमेना है जो मैं अभी समझा देता हूँ, बाद में आप देख लीजिए। राइजिंग मून जब होराइजन पे होगा तो आपको सचमुच वो बड़ा है ऐसा फील होगा। जैसे धीरे 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 वो जेनिथ की तरफ चला जाएगा तो वो आपको शायद उतना बड़ा न लगे। जरा आप उसमें अभी हम लोग जाएंगे नहीं। ओके, एक कौन आ गया? ठीक है। एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन, जो लेट आते हैं ना वो आओ ही मत। ओके, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। अभी 2 बार मैंने अभिजीत सकपाल को एंट्री दी, एक बार मैंने अवनीश को दी। आप लोगों को आना है तो 9 के पहले आना है, नहीं तो नहीं आना है। ओके, आपकी जरूरत है क्लास में क्योंकि आप अच्छे स्टूडेंट हो, बट इतनी जरूरत नहीं है कि मैं आपके लिए क्लास को डिस्टर्ब करूं। ओके, सो नाउ कम टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि आज के मून को हम सुपर मून क्यों बोले। यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। नाउ जो ब्लड मून की बात है वो समझना बहुत जरूरी है। ब्लड मून, या आपने रिफ्रैक्शन पढ़ा होगा, प्रिज्म वाला चीज पढ़ा होगा कि प्रिज्म से कोई भी चीज जाती है तो मीडिया चेंज होने के कारण जो लाइट पास हो रही है, जिसमें एक्चुअली 6-7 एलिमेंट्स है ना, वो सब एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे बेंड और एंगल पे बेंड होते हैं, तो डिफरेंट पैटर्न की तरह बाहर आते हैं। तो प्रिज्म से जाने के बाद हमको एक्चुअली इंद्रधनुष जैसी चीज दिखती है, जिसको, सॉरी बट 2 दिन पहले मुझे मैसेज था कि बेंगलोर में एक सूरज या सन के अराउंड एक रिंग दिख रही है, दैट इज कॉल्ड हेलो। ओके, 22 डिग्री हेलो। तो अभी सभी इंजीनियर है मेरे बैचमेट भी, बहुत सारी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट है, बट देन डोंट गो टू गूगल एंड सी व्हाट इज इट। तो मुझे मैसेज फोन आया तो मैंने उनको बताया कि ये क्या है। देन ओहो इट इज लाइक दिस। तो ये भी आइस क्यूब्स, छोटे छोटे मिनिएचर फॉर्म के होते हैं, उनके कारण ही वो फेनोमेना दिखता है जो आपने न्यूज में पढ़ा होगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जब सन और मून के बीच में, सन और मून के बीच में एक, सॉरी, मून एंड सन आर अपोजिट साइड्स ऑफ द अर्थ इन सेम प्लेन, तो लूनर इक्लिप्स हमको दिखता है। और इस दरमियान हमको मून हमेशा ही रेड दिखने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से सनलाइट बेंड होके मून की तरफ जाती है, उसका जो वेवलेंथ है वो रेडिश रेंज में होता है, एंड दैट इज व्हाई वी सी मून टू बी रेड। ओके, अभी सर ने गलती से पिंक बात की,
बट नॉर्मली वो आर्टिस्टिक इंप्रेशन जो इंटरनेट पे फोटो के फॉर्म में होते हैं या कहीं स्पेसिफिक जगह से वैसे दिखते होंगे, बट नॉर्मली यू विल सी रेडिश। अभी आज के लूनार इक्लिप्स का प्रॉब्लम ये है कि ये जस्ट राइज, देखो फिर से कोई तो आ रहा है, ये अभिजीत सकपाल, उसको डिनाई कर देता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि आज के लूनार इक्लिप्स की खासियत ये है कि वो हमको पार्शियली भी नहीं दिखने वाला। पार्शियली कहाँ दिखने वाला था, एक्सेप्ट सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ जो कंट्रीज है, वेस्ट बंगाल, सम कोस्टल पार्ट ऑफ ओडिशा, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, यहाँ दिखने के चांसेस थे। बट वहां भी कुछ साइक्लोन आया हुआ है, तो वहां भी अगर क्लाउडी रहेगा आसमान तो उनको नहीं दिखा होगा। तो रियली स्पीकिंग हमारे लिए ये सुपर ब्लड मून जो है वो सिर्फ सुपर मून है, क्योंकि इक्लिप्स तो दिख नहीं रहा, टोटल लूनार इक्लिप्स तो है ही नहीं हमारे यहाँ, तो वो ब्लड मून नहीं दिखेगा। हमको नॉर्मल ही मून दिख रहा है, जो आपने शायद शाम को देखा होगा हमारे मुंबई पनवेल के आसपास, 7:08 के आसपास इनका एंट्री, सॉरी राइजिंग हुआ। ओके, नाउ कम टू समथिंग विच इज ऑफ टुडेज क्लास। ओके, तो आज के क्लास के बारे में शुरुआत करते हैं। हाइड्रा, आज हम वासुकी कॉन्स्टिलेशन के बारे में देखेंगे। ओके, तो वासुकी कॉन्स्टिलेशन जो है ये हाइड्रा, ये आसमान का सबसे बड़ा वाला हिस्सा कवर करने वाली कॉन्स्टिलेशन है। मेरा आवाज ठीक से आ रहा है कि नहीं? एक मिनट ना, आपको वो चैट बॉक्स में जाके मैसेज देख लेता हूँ। एक मिनट, जस्ट पुट इन चैट बॉक्स। मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है ऐसा लिख रहा है। ओके, आपने लिख, ओह सर, आई कैन नॉट हियर यू सर, इट इज बिकॉज ऑफ और, अच्छा, ऑडिबल क्लियर, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, बट बीच में काफी देर, पहले तो अभिजीत सकपड़ अगर आप मुझे सुन पा रहे हो ना, तो यू डोंट अटेंड दिस क्लास। ओके, टाइम पे आना है, नहीं तो मत आओ, यू आर नॉट रिक्वायर्ड। ओके, दूसरा है, एक मिनट जस्ट गिव मी सेकंड, ऑडिबल क्लियरली, संकल्प भी बोल रहा है सर वॉइस ट्रैकिंग। हाँ, वो बीच में शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, मेरे यहाँ रहता ही है। तो संकल्प बोल सर इट इज, यस यस यस, ये ऑनलाइन क्लासेस का थोड़ा इशू, इट इज बिकॉज अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, करेक्ट करेक्ट, अर्थ एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, मतलब आपको सुनाई दे रहा है। ओके, और दिख भी रहा है। मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे सब माफ कर दो। अभी हम चलते हैं हाइड्रा में, फटाफट कवर कर लेते हैं। हाइड्रा कॉन्स्टिलेशन आपके स्क्रीन पे शायद दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं मुझे देखने तो एक बार फिर से, दिख रहा है। ओके, तो हाइड्रा कॉन्स्टिलेशन जो है यह आसमान का 88 कॉन्स्टिलेशन में से सबसे बड़ा कॉन्स्टिलेशन है। उसका अप्रोक्सीमेटली साइज इन स्क्वायर डिग्रीज इज 1303। ओके, 1303 स्क्वायर डिग्रीज। और लंबाई की बात करें तो पुराने जमाने में जब मैं पढ़ता था वो तारांगण किताब की बात की, उसमें तकरीबन 105 डिग्रीज लंबाई बात की है, और जबकि आजकल लेटेस्ट जो मैं इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाला वहाँ 100 डिग्री दिखा है। इसका सदर्न एंड बॉर्डर पे लिब्रा है, सेंटोरस है, और नॉर्दर्न एंड बॉर्डर पे कैंसर है, जो आज श्लोक हमको पढ़ाने वाला है। It was included among 48 constellation listed by 2nd century astronomer Ptolemy, और commonly represented as a snake, water snake. ओके, ये सेलेस्टियल इक्वेटर को ऐसे कवर कर रहा है, इस तरीके से दिखाया जाता है। अभी ये जो मैंने चित्र आपके सामने रखा है उसका कोई हाइड्रा के साथ संबंध नहीं है। हमने अब तक जो कवर किया ये मैं आपको बार बार दिखाता रहूंगा। ये लास्ट टाइम कवर की हुई सेटस कॉन्स्टिलेशन है, और ये चित्र रहेगा कि हमने ये कवर नहीं किया। ये जो जो आपको दिखा रहा हूं मैं वो, तो ये चीज मैंने कवर नहीं किया। ओके, नाउ एक मिनट, ऐश्वर्या, ओके, ठीक है। तो नहीं नहीं, वो उनका एक एंट्री। तो ये हमने कॉन्स्टिलेशन देख लिया। अभी हम लोग देख रहे थे कि ये हाइड्रा और ये नीचे वाला जो एरो है वो कैंसर है, जो श्लोक लेने वाला। तो अभी आप ही खुद इसके ऊपर नजर घुमाएंगे, जो मैंने आपके सामने रखा है अगर क्लियरली विजिबल है तो आप थोड़ा खुद ही देख लीजिए कि आपको समझ में आ जाएगा कि कितना लंबा वो घूम रहा है।
ऑलमोस्ट सेंटर से लेके एंड तक हाइड्रा जा रहा है। थोड़ा आजू बाजू भी देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसके बगल में जो कॉन्स्टिलेशंस है वो सारे कॉन्स्टिलेशंस को इंक्लूड करके माइथोलॉजी। ओके, और वो माइथोलॉजी क्या है वो हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पर उसके पहले हम थोड़े चित्र देख लेते हैं कि एग्जैक्टली ये दिखता कैसे। तो ये यहाँ मैंने आपको कुछ दिखाया, ये एक आर्टिस्टिक पुराने जमाने का इम्प्रेशन है आसमान का, जिसमें आपको एक लंबा सा सांप दिख रहा होगा और उसका एक सर्कल दिखा रहा है सर का, जो एक डार्क जोन है क्योंकि वहां बहुत कम तारे हैं, पर वो इम्पोर्टेंट लोकेशन क्यों देखेंगे। बट पहले थोड़ा क्लियर वाला पिक्चर, इस क्लियर वाले पिक्चर में आपको बहुत सारी चीजें दिखेंगी। अभी यहाँ नीचे एक कॉन्स्टिलेशन है, इस तरफ भी एक कॉन्स्टिलेशन है, फिर यहाँ एक कौवे जैसा चीज दिख रहा है, यहाँ पे बाद में एक पॉड जैसी चीज दिख रही है, ऊपर की तरफ जाएंगे तो कुछ मेजरिंग कंपोनेंट दिख रहा है, फिर नीचे की तरफ उसके बहुत सारी चीजें हैं, और उसमें ये जो सांप बहुत बड़ा वाला छिपा हुआ, तो अभी ये जो सांप हम देख रहे हैं इसकी माइथोलॉजी क्या है वो जान लेते हैं, फिर उसके एक्चुअल विजिबिलिटी। ग्रीक कॉन्स्टिलेशन हाइड्रा इज एडेप्टेशन ऑफ बेबिलियन कॉन्स्टिलेशन। ये एक सांप को इंक्लूड करता है जो बेसिकली कुछ एक मिलापीन ऐसा कुछ उन्होंने वर्ड यूज किया है जिसका मुझे एग्जैक्टली मतलब नहीं समझा, तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। हाँ, उधर लिखा भी है कि हाइड्रा इज डिपिक्टेड ऑन द मानुचिहर ग्लोब मेड इन मशाद। अभी हम लोगों ने मशाद के बारे में टाइम के बारे में पढ़ा था, तो हमने बात की थी तभी हमने इसको समझा या इस वर्ड को सुना था। एनी अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। शेप ऑफ हाइड्रा रिसेम्बल्स लाइक अ ट्विस्टिंग स्नेक, features as such in some Greek mythologies. One might associated with it includes water snake that crows served to Apollo in a camp when it was sent when crow was sent for getting some water. अभी ये क्या है, इस तरीके से है कि जो अपोलो है उन्होंने एक कौवे को भाई पानी लाने के लिए भेज दिया, तो उन्होंने लेट किया, वो कुछ घूमता रहा, कुछ फल वल खाता रहा, और उसने लेट क्यों हुआ ये बताने के चक्कर में वो सब अपने तरफ से कुछ झूठ मूठ बोल दिया। अपोलो ने जब ये गलती उसकी पकड़ी तो बहुत सारी चीजें करने के साथ उनको उस पर्टिकुलर सेलेस्टियल स्पेयर पे कास्ट भी कर दिया, ऐसे लिखा हुआ। इट इज एसोसिएटेड विथ मॉन्स्टर हाइड्रा। ये जो हाइड्रा यहाँ दिख रहा है उसका दूसरा स्टोरी, जिसके बहुत सारे सर थे, और ऑब्वियसली उसको मारने का किसी को तो सुपारी दिया होगा। ओके, मतलब किसी को तो ये दिया होगा इनविटेशन। तो इट वाज हरक्यूलस, जिसने बहुत सारे एडवेंचरस डिड करके अपना नाम और अपनी इमेज सेलेस्टियल स्पेयर पे लिख दी। तो ये हरक्यूलस ने इस पर्टिकुलर हाइड्रा को मारा, बट मारना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हाइड्रा का एक सर काटो तो वहां पे दो उग जाते हैं। ऐसे में जो हरक्यूलस का नेफ्यू था आयोलस, उसने उस पर्टिकुलर सांप का जो बहुत डरावना था उसका गर्दन जो है उसको इस तरीके से काटा कि वहां से उगने वाले सर उग नहीं पाए। इस तरीके से उन्होंने हाइड्रा को मार दिया। अभी ऐसे बहुत सारी माइथोलॉजी। लेट्स कम टू वन ऑफ द ग्रेट सिविलाइजेशन, दैट इज हिंदू सिविलाइजेशन। यहाँ पे जो ये हाइड्रा है इसमें अश्लेषा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र मतलब वासुकी का सर। और ये जो वासुकी है वो समुद्र मंथन के लिए जो नाग यूज किया वो भी है, ऐसे माना जाता है। ओके, तो अभी वो पर्टिकुलर चीज में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी ये स्टोरीज पता रहती है। नाउ चाइनीज एस्ट्रोनॉमी, द स्टार दैट करस्पॉन्ड्स टू हाइड्रा आर लोकेटेड विद इन द वर्मिलियन बर्ड एंड द अजूरे ड्रैगन। उनका भी ड्रैगन का ही बहुत सारा माइथोलॉजी रहता है। Head of the Hydra was collectively known as a Minal Azhar, meaning belonging to the uninhabited spot in Arabic. अभी हाइड्रा के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट तारे हैं, बट विजिबिलिटी बहुत कम है। तो डार्क जब स्काई कंडीशन होंगी या उस तरीके के स्काई कंडीशन में ही हाइड्रा ठीक से दिख पाता है। थोड़ा मैं फिर से एक बार चैट बॉक्स देख लेता हूँ कि आप लोगों ने कुछ पूछा तो नहीं, या मेरी आवाज ठीक से आ रही है। लास्ट मैसेजेस बाय अवनीश की आवाज क्लियर ठीक। तो अभी भी आवाज क्लियर है क्या? चैट बॉक्स में फटाक से लिख दीजिए कोई तो एक। इज इट क्लियर एंड विजिबल? स्क्रीन इज विजिबल?
यस, ओके, थैंक यू। सो लेट्स गो इनटू द डिस्कशन अगेन। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो हमने यहाँ माइथोलॉजिकल चित्र दिखाया, अभी अगर मैं आसमान में एक्चुअली हाइड्रा ढूंढने की कोशिश करूँ, तो ये आपके स्क्रीन के सामने मैंने रखा। आप देख सकते हो कि इसमें एक ही तारा है जो थोड़ा बहुत ब्राइट, और वो दिखाना जरूरी है। तो यहाँ मैंने उसको ऐसे सर्कल घुमा दिया। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टार। तो ये जो मैं लाइन उसके ऊपर लेके आया, अभी आप देख सकते हो कि मैं जिस तारे की बात कर रहा हूँ वो है वासुकी हृदय, मतलब ये सांप का हार्ट। ओके, और उसका नाम है अल्फार्ट। तो हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये हाइड्रा के कुछ चित्र देख। जैसे मैंने बोला था, ये है कॉर्वस यानी हस्त नक्षत्र, ये है क्रैटर यानी चषक, और फिर अगर हम ऊपर चले तो, सॉरी थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, और ये चल रहा है हाइड्रा, और ये है अश्लेषा नक्षत्र, जहां मैंने सर्कल घुमाया। तो इस तरीके से ये सांप दिखता है, ये आपको आसमान में। अभी बहुत ही रेयरली अल्फाट तो अच्छे से दिखता है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड जो है 2 के आसपास है। बाकी चीज को देखने के लिए इतनी तकलीफ करनी पड़ती। अब देखो, अभी प्रोसियन यहाँ दिखाया है, नहीं नहीं उसका तारा नहीं है, प्रोसियन और कॉन्स्टलेशन का। वो कितना ब्राइट है कंपेयर टू एनी ऑफ द स्टार इन दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन। तो मतलब बहुत ही फिबल तारे होने के कारण हमको वो ठीक से दिख नहीं पाता। एनी विल नॉट गेट मच इनटू दिस, लेट्स गो बैक। हमको और थोड़ी डिटेल जानना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं हमेशा आपको एक कंपैरिजन दिखाता हूँ कि ये जो ब्लू लाइन जा रही है, दिखा देता हूँ तो ये वाली, ये हमारा क्या है, इक्लिप्स। ये जो श्लोक लेने वाला है वो कॉन्स्टिलेशन यहाँ है, देखो कैंसर। फिर अभी मैं बोल रहा हूँ कैंसर, कर्क राशि, कर्क राशि में बिहाइव क्लस्टर M44। ओके, तो उसमें भी कुछ नक्षत्र है। नीचे हमने अश्लेषा की बात की, तो ये मैंने जो दूसरा सर्कल वासुकी का सर दिखाने के लिए की वो अश्लेषा है। और फिर अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपको दिखेगा कि ये कॉर्वस मतलब हस्त नक्षत्र है, ये कन्या राशि है, ये कन्या राशि में ये चित्रा है, वो भी एक नक्षत्र है। इस तरीके से ये चल रहा है। तो अगर ये सारी चीजें आप दिमाग में रखेंगे तो आपका कहीं कुछ आपको एग्जाम देना है तो वो सब काम आएगा। नाउ लेट्स गेट इनटू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हाइड्रा में जो तारे हैं उनकी खासियत क्या है। यहाँ आप देख ही रहे हो कि मैंने अल्फाट की बात की, अल्फाट को सर्कल घुमा देता हूँ थोड़ा सा, तो ये अल्फा है। ये जो अल्फा हम देख रहे हैं, फिर आजू बाजू में बीटा, नीचे की तरफ ये बीटा है। ओके, तो लेट्स गेट इनटू द अल्फा। हाइड्रा कंटेन्स ओनली वन मॉडरेटली ब्राइट स्टार कॉल्ड अल्फा, और वो उसका अल्फा हाइड्रा है। इट इज एन ऑरेंज जायंट ऑफ मैग्नीट्यूड 2, 177 लाइट ईयर्स की दूरी पे है फ्रॉम अर्थ। इट्स ट्रेडिशनल नेम मीन्स द सॉलिटरी वन, मतलब एक अकेला है जो पूरे कॉन्स्टिलेशन में दिखने की जिम्मेदारी निभा रहा है। बीटा हाइड्रा जो दूसरा सर्कल मैंने बनाया इज द ब्लू व्हाइट स्टार ऑफ मैग्नीट्यूड 4.3, 365 लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से। गैमा हाइड्रा जो है वो येलो जायंट है, मैग्नीट्यूड 3 के आसपास है, 132 लाइट ईयर की दूरी पे है। हाइड्रा हैज वन ब्राइट बाइनरी स्टार एप्सिलॉन हाइड्रा, इसमें आपको दिख रहा है, सॉरी एप्सिलॉन हाइड्रा जो आपको इस पर्टिकुलर मैप में दिख रहा है वो अमेच्योर टेलीस्कोप से स्प्लिट करना मुश्किल है, बट इसका पीरियड 1000 ईयर्स है और 135 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। प्राइमरी स्टार येलो टाइप का 3.4 मैग्नीट्यूड का है, सेकंड स्टार ब्लूइश है, मैग्नीट्यूड 6.7। ऐसे कई डीम टाइप के तारे इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन में है। अगर हम सिर्फ लिस्टिंग की बात करें, ओके, तो इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन में जस्ट मैं थोड़ा और इसको बड़ा करता हूं। इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिलेशन में तकरीबन फ्लैम्स्टीड मेथड से जाएंगे तो 75 तारे हैं। स्टार्स जिनको प्लैनेट्स है ऐसा अब तक जानकारी हुई है, ऐसे 18 है।
और मेन स्टार जो हमको दिखते हैं वो तकरीबन 17 स्टार्स इसमें विजिबल है। ब्राइट तारे 3 मैग्नीट्यूड के ऊपर बोलेंगे तो 2 ही है, हमने अभी ही उनकी बात की, एक है अल्फा, दूसरा है बीटा। और इसमें मेसियर ऑब्जेक्ट 3 है जिनके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। ओके, अभी अगर माइथोलॉजी और स्टार्स हमने कवर किए हैं तो नाउ लेट्स गेट इनटू द डीप स्काई ऑब्जेक्ट। ओके, तो डीप स्काई ऑब्जेक्ट देखने के पहले उनके फोटो देखने बहुत जरूरी है, तभी आपके दिमाग में सभी ये अच्छे से रह जाता है। सो दिस इज वेरी प्रोमिनेंट डीप स्काई ऑब्जेक्ट कॉल्ड मेसियर ऑब्जेक्ट M83। M83 इज सदर्न पिनव्हील गैलेक्सी। ये बॉर्डर ऑफ हाइड्रा और सेंटारोस पे है। ओके, मैग्नीट्यूड तकरीबन 8 के आसपास है और प्रेसॉन टाइप की है। ओके, इसको ढूंढने के लिए 1, 2, 3 एंड 4 सेंटोरी के जो कॉन्स्टिलेशन के तारे हैं उनको एज अ गाइड यूज किया जाता है। इट हैज बीन होस्ट टू 6 सुपरनोवा मोर देन एनी मेसियर ऑब्जेक्ट्स। ओके, लार्ज एमेच्योर टेलीस्कोप अबव 12 इंचेस अपर्चर रिवील इट्स स्पाइरल आर्म। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप टेलीस्कोप लेने जाओगे तो ये बहुत जरूरी है कि आपका टारगेट्स क्या है। अगर आप इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से देखना चाहते हो तो 12 इंच का टेलीस्कोप मतलब बहुत बड़ा मासिव ऑब्जेक्ट हो गया और बहुत महंगा भी हो गया, हैंडलिंग भी डिफिकल्ट हो गया, तो आप इस चीज को नहीं खरीद सकते। शायद आपका हॉबी परस्यू करने के लिए आपको ऐसी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करनी पड़े। ओके, तो ये जो है इसमें बहुत सारी है। इस पर्टिकुलर मेसियर ऑब्जेक्ट का हमसे जो डिस्टेंस है अर्थ से वो तकरीबन 150 लाख किलोमीटर मतलब 1.5 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। और अपरेंट साइज 12 डिग्री से 12 मिनट लिखा है, 12 मिनट की है तकरीबन। मैग्नीट्यूड तकरीबन 8 के आसपास। इस तरीके की चीजें हमने बार बार देखी है। अभी एक इम्पोर्टेंट ये है M68 ग्लोबुलर क्लस्टर, आगे जाके देखेंगे M48 विच इज ओपन क्लस्टर। ये तीन ही ऑब्जेक्ट है बट तीन तीन टाइप के हैं, एक है आपकी गैलेक्सी, दूसरी है वो ग्लोबुलर क्लस्टर, तीसरा है ओपन क्लस्टर। M68 इज अ ग्लोबुलर क्लस्टर नियर M83 ओनली और visible in binocular and resolves in a medium amateur telescope. It is 31,000 light years away from Earth और मैग्नीट्यूड तकरीबन 8 के आसपास ही है। ओके, इसके और डिटेल्स में हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे M48। M48 ओपन क्लस्टर, अभी ग्लोबुलर क्लस्टर ओपन क्लस्टर के बारे में मैंने पहले आपको बताया था। एक ग्रेविटेशनली बाउंडेड रहता है और एक सिर्फ लगता है वहां पे है बट दे आर नॉट ग्रेविटेशनली बाउंड। ओके, इन वेस्टर्न एंड ऑफ द सर्पल, ये जो सांप है उसके वेस्टर्न एंड की तरफ M48 है जो ओपन क्लस्टर है। ये नेकेड आई को भी विजिबल है। शेप हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रायंगुलर 80 स्टार क्लस्टर इज यूजुअली लार्ज मोर देन हाफ डिग्री इन डायमीटर, लार्जर देन द डायमीटर ऑफ फुल मून। मतलब फुल मून का डायमीटर हम हाफ डिग्री पकड़ते हैं, प्रिसाइजली 0.52 डिग्री पकड़ते हैं, उसका डायमीटर उससे थोड़ा बड़ा है। ओके, तो ये हो गया आपका M48 ओपन क्लस्टर। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको देखेंगे, प्लेनेटरी नेबुला। ये प्लेनेटरी नेबुला वगैरह मैं आपको बहुत सारी चीजें बता देता हूँ बट कभी कभी ये सारी चीजें मैंने भी देखी नहीं होती। तो अभी मैं ये सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ का स्पीकर शुरू हो गया, तो प्लीज चैट बॉक्स में आप लिखेंगे कि गलती से आपको कोई डिस्टरबेंस है। फिर से वॉइस इज क्रैकिंग। अभी हेलो, अरे काफी देर से, इज माई वॉइस क्लियर? नो सर, इट इज क्लियर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप लोगों को कुछ तो करना चाहिए सर। नो सर, नो सर, नो डिस्टर्बिंग। वाह, क्या लिखते हो यार। हाँ, ठीक है, चलो मुझे समझ में आया कि मेरा वॉइस क्लियर है, उसको खुला रख दीजिए आप। हाँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे एक प्लेनेटरी नेबुला की जिसका नाम नॉमेनक्लेचर है NGC, न्यू जनरल कैटलॉग के हिसाब से 3242। अभी ये 3242 वाला जो है उसका मैग्नीट्यूड 7.5 है, 14,000 लाइट ईयर्स दूरी पे है। 1785 में विलियम हर्शल ने बहुत सारी चीजें ढूंढी
उसमें ये इंक्लूडेड है। इसका घोस्ट नेम, इसका एक निक नेम है, वो है घोस्ट ऑफ द जुपिटर, बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्राइकिंग रिसेम्बलेंस टू द जायंट प्लैनेट. Its blue-green disk is visible in small telescope and its hollow is visible in the larger telescope. तो हमने अभी थोड़ी पहले 22 डिग्री हलो की बात की ना, ये कुछ वैसे ही टाइप की चीज है. तो आज का मेरा काम खत्म हो गया. मैंने 2-4 मिनट लेट कर दिया, 3 मिनट, क्योंकि 9:33 हुए हैं. अभी आगे का काम हमारे सबसे करीब दोस्त मिस्टर श्लोक करेंगे. Shlok, are you ready with your presentation or whatever you want to say? Yes, sir. Sir, is it fine if I read from the presentation? No problem. आप इतने छोटे हो कि आपको सब कुछ अलाउड है. सिर्फ आप अपना ये वीडियो बंद करो. Yes, sir. हाँ, टीचर कितना हैंडसम है, ब्यूटीफुल है, वो देखने की दिखाने की जरूरत नहीं है. ओके, आप सिर्फ पीपीटी प्रेजेंट कर सकते हो. नहीं कर रहे हो तो यू कैन जस्ट, हाँ ओके, वैसे आप कर. वाह, बढ़िया. सर दिख रहा है क्या? हाँ, दिख रहा है. और मैं मेरा माइक बंद कर देता हूँ श्लोक, बट तुम्हें कभी भी कुछ लगेगा तो मैं माइक ऑन करके आपसे बात करूँ. हाँ सर, नो प्रॉब्लम सर. Good morning, respected teacher and my dear friends. Today I'm going to be presenting a PPT on Cancer constellation. Cancer constellation. Cancer is one of the 12 zodiac constellations. It symbolizes the crab. It is found in the North Celestial Hemisphere. It is medium-sized with an area of 506 square degrees. Its stars are rather faint. Its brightest star, Beta Canceri, also known as Altaf or TARF, having an apparent magnitude of 3.5. Cancer is a medium-sized constellation that is bordered by Gemini to the west, Lynx to the north, Leo Minor to the northeast, Leo to the east, Hydra to the south, and Canis Minor to the southwest. It is best seen at 9 p.m. during the month of May. Cancer constellation has 2 stars with known planets, including 55 Canceri. This includes 1 super Earth and 4 gas giants, one of which is in the habitable zone, and as such has expected temperatures similar to Earth. At the angular heart of this sector of our celestial sphere is Pryzap Messier 44, one of the closest open clusters to Earth and a popular target for amateur astronomers. History and mythology. History. Cancer was first recorded by Ptolemy in the 2nd century AD in Almagest under the Greek name Karkinos. Mythology. In Greek mythology, Cancer is identified with the crab that appeared while Hercules fought the many-headed Hydra. Hercules slew the crab after it bit him in the foot. Afterwards, the goddess Hera, an enemy of Heracles, placed the crab among the stars. Facts about Cancer constellation. Right ascension 7 hours 55 minutes 19.7973 seconds. 09 hours 22 minutes 35.0364 seconds. Declination 33.1415138 degrees to 6.4700689 degrees. Area 506 square degrees. Main stars 5. Bear Flamsteed stars 76. Stars with planets 10. Deep sky objects. Cancer is famous as the home of Pryzap Messier 44, an open cluster also called a beehive cluster, located right in the center of the constellation, which is located above about 590 light years from Earth. It is one of the nearest open clusters to our solar system. It contains about 50 stars, the brightest of which are of the 6th magnitude. Epsilon Canceri is the brightest member at magnitude 6.3. This open cluster is also one of the largest open clusters visible. It has an area of 1.5 square degrees, or 3 times the size of the full moon. It is most easily observed when Cancer is high in the sky north of the equator. This period stretches from February to May.
It was one of the first objects that Galileo observed through his telescope. The smaller, denser open cluster, Messier 76, is also located in Cancer. It is 2,600 light years from the Earth. It has an area of approximately 0.5 square degrees, the size of the full moon. It contains approximately 200 stars, the brightest of which are of the 10th magnitude. Quasar QSO J0842 plus 18351 is a quasar used to measure the speed of gravity in virtual long baseline autonomous underwater vehicle experiment conducted by Edward Fomalhaut and Sergei Kopykin in September 2002. List of 5 brightest stars in the Cancer constellation. The brightest star in the Cancer constellation is the Beta Canceri, followed by Delta Canceri, Iota Canceri, Alpha Canceri, and Upsilon Canceri. Friends, today I'll be showing a gallery of photographs of the Cancer constellation. This gallery has photographs of smaller size, so you're welcome to zoom in and see these beautiful pictures. Gallery of photographs of the Beehive cluster. This is a photograph in the night sky of the Beehive cluster, while this is a photograph of the Cancer constellation. Bibliography. This information is sourced from Wikipedia, while the photographs are sourced from the internet. Thank you. You are done? Yes, sir. Okay. See, my interest and intention behind telling you to do at least one constellation is that you should be able to gather the information. It's very readily available on internet. But then what Shlok did is he did prepare PPT. So at least he's getting hands-on experience of preparing PPT and presenting. Now, one request he made is that he wanted to just read it out. It's obviously because it's very difficult to remember all those words. But then remembering is something important, and that is why we are in this particular class. तो हमें कुछ चीजें अच्छे से बाय हार्ट होनी है, फिंगर टिप्स पे रहनी चाहिए. इसलिए अगर हमने ये क्लास ज्वाइन किया है तो ये हमारा पहला काम है कि जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन इस तरीके का, जैसे श्लोक ने मुझे बोला था कि सर मुझे कम से कम 15 मिनट चाहिए, बट देखिए उसका 5 मिनट के अंदर ही हो गया. 5 मिनट ही तकरीबन उसको लगे. तो 5 मिनट में कहीं भी कोई लेक्चर देना है, भाषण देना है, तो बहुत ज्यादा कंटेंट चाहिए. तो अगर आज से जो कोई 5th में है, कोई 6th में है, वो बच्चे एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो शायद 10 साल बाद आपके पास इतना कंटेंट होगा कि अगर आप 1-1.5 घंटा कहीं बात करना है तो आराम से बात कर पाओ. तो दिस इज द इंटेंट. तो ये इंटेंट सेटिस्फाई हो, इसलिए अगर अभी आप श्लोक चाहते हो तो आप भी, बट बाकी सबके लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप प्रेजेंटेशन बनाओ, आप उसमें जितनी जानकारी डालनी है डालो. आपका डिक्टेशन जो है वो तकरीबन 10 मिनट का अलाउड है, but then that is reading, okay, what is available in front of you. But I will expect you to say something in summarized form without looking at your screen as a general information available with you in your brain for at least 2-3 minutes. मतलब जो कॉन्स्टिलेशन आप बोल रहे हो उसके बारे में 2-4-5 मिनट आपको खुद से बोलना आना चाहिए अच्छे से. जैसे जो कैंसर कॉन्स्टिलेशन है, इसकी खासियत ये है कि जो 12-13 हेरोइक डीड्स करने के लिए हरक्यूलस को बोला गया था, उसमें ये कैंसर भाई साहब इस क्रैब ने भी उस पर अटैक किया, बट उसने कुछ इस तरीके से इस क्रैब को मार दिया कि उसका जो इफेक्ट होना है वो हो नहीं पाया. और श्लोक ने जो चीज बताई कि उसने उसके पाँव को काट लिया, ये इंफॉर्मेशन शायद स्कॉर्पियो को एप्लीकेबल है. बट आजकल होता क्या है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इधर उधर से लोग कॉपी पेस्ट करके इंटरनेट पे डाल देते हो कि जब आप सर्च में डाल देते हो कि प्लीज कॉन्स्टिलेशन कैंसर,
तो जो इंफॉर्मेशन आएगी उसमें से आप पकड़ के चलो कि 10-20% तो 100% गलत। तो इस तरीके से कई चीजें आपके सामने आ जाएंगी जो आनी ही चाहिए, इसलिए हमने ये मोड रखा है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा बट साथ में आप भी ये सारी चीजें करोगे। सो नेक्स्ट टाइम के लिए कुछ लोग ऑलरेडी डिसिग्नेटेड है, मैं भूल गया हूँ, तो फिर से रीराइट कर सकते हैं कि वो कौन सा कॉन्स्टिलेशन लेने वाले हैं वगैरह। आज हमने शुरुआत में जो सेलेस्टियल इवेंट्स की बात की, मैं ये चाहता हूँ कि ये भी असाइनमेंट आपको ले लेना चाहिए, और एटलीस्ट लेक्चर में नहीं बोलेंगे तो भी ग्रुप पे सेलेस्टियल इवेंट आज क्या है, कल क्या है, परसों क्या है, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन गैदर करके डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको हाइड्रा सिखाया कॉन्स्टिलेशन, ये वासुकी मतलब जो है वो, इस कॉन्स्टिलेशन से भी मीटियोर शावर होता है दिसंबर के महीने, बट इतना फीबल है कि जेनिथल आवरली रेट इज नॉट मोर देन 7। अभी 7 मीटियोर पर आवर जेनिथ से देखने के लिए कौन रात को बैठेगा, और वो भी दिखेंगे कि नहीं गारंटी नहीं, क्योंकि जब 50, 100, 150 का रेट होता है तो गलती से हमारे मुंबई और सबब में 10, 20, 40 देख पाते हैं हम। तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती है, आप उसके बारे में जानकारी रखेंगे, कहीं डिस्टेंट प्लेस पे गया जहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं लाइट का, तो प्रोबेबली यू विल बी एबल टू एंजॉय सच इवेंट्स आल्सो। रेगुलर बेसिस पे ये होता है। आज ऐसा पुराने जमाने में कितना होता था कि लोग कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट क्रॉस करके इक्लिप्स देखने जाते थे। आपको सर आर्थर एडिंगटन की स्टोरी भी पता होगी, जब वो केप ऑफ गुड होप या वही कहीं साउथ अफ्रीका में बैठा था, और उन्होंने जो आइंस्टाइन का सिद्धांत है उसके हिसाब से जो क्या बोलते हैं कि ग्रेविटी लाइट को अफेक्ट करता है, ये प्रूव करना था प्रैक्टिकली। थ्योरेटिकली ये उन्होंने वेरी कॉन्फिडेंट हूँ अल्बर्ट आइंस्टाइन, बट प्रैक्टिकली प्रूव करने का काम उसको जब आर्थर एडिंगटन ने किया, तो इट इज इन वन सोलर इक्लिप्स, इस सन के पीछे होने वाला जो होगा ऐसा तारा सोलर इक्लिप्स के दरमियान हमको दिख रहा था। तो ये जब चीज उन्होंने जाके मतलब इन्फॉर्म हुआ, अल्बर्ट आइंस्टाइन को इन्फॉर्म की, तो उसमें कोई ढूंढने वाली चीज नहीं थी। मैं जो बोल रहा हूँ वो सही होगा, इस तरीके का रिएक्शन अल्बर्ट आइंस्टाइन का था, बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फिडेंस ऑन हिज थेराटिकल प्रपोजल्स पुट अप। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जब जैसे आप पढ़ने लगोगे, जैसे आप इंफॉर्मेशन बटोरने लगोगे, तो इट विल कीप गोइंग अराउंड यू एंड फाइनली destined टू बी पार्ट ऑफ योर इंफॉर्मेशन इन ब्रेन। तो ये करने के लिए आपको टाइम पे क्लास अटेंड करना चाहिए। आप ऐसे 50 जगह से आते हो, जहां से क्यों आते हो, जैसे बांटकर यू हैव प्रॉब्लम नहीं सकपाल, ओके, अब 3-4 बार एंट्री किया, ओके, अभिजीत सकपाल, ये डिस्टर्ब होता है उसको क्लास में। आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो आपको आके रहना चाहिए पहले क्लास में। आप खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, और सडनली आप लोग क्लास में आ जाते हो, चलो यार टाइम पास करते हैं। तो ये अप्रोच थोड़ा मुझे बुरा लगता है आप लोगों का, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ उसी क्लास में प्रेजेंट रहते हैं जो नॉर्मली फ्री है उनके लिए। तो इस तरीके का अप्रोच ना हो, इसलिए हमने भविष्य के सारे ऐसे ऑनलाइन के क्लास के लिए माइन्यूट पेमेंट रखा है, एंड वी आर वेरी एडामंट अबाउट दैट। फ्री में कोई क्लास कभी भी इसके बाद नहीं होगा, जो ऑलरेडी चला गया उसका ठीक है, बट इनसिंसियरिटी दिखेगा इस तरीके से, कोई 9:15 9:30 ज्वाइन करेगा तो विल रिमूव यू फ्रॉम क्लास, ओके। एंड दिस इज नॉट हार्श, दिस इज वेरी सिंपल क्लियर गाइडलाइन टू यू टू बी सिंसियर, डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड टू द क्लास। तो इसके अलावा हमारे पास और भी 10 मिनट है। आज किसी के कुछ एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के बारे में, उसका ज्ञान बढ़ाने के बारे में कुछ डाउट्स है, तो प्लीज चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे यहाँ जो वॉइस डिस्टर्बेंस था वो इतना नहीं है, सो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। तो आप पूछ सकते हो अगर आपका कुछ डाउट्स है तो। आज श्लोक ने एक काम कर दिया, नेक्स्ट टाइम वाले वॉलेंटियर्स रेडी रहे तो आप पूछ सकते हो। अभी भव्या धाम से अगर आपने ज्वाइन किया है तो जरा माइक ऑन करिए, भव्या धाम से, भव्या धाम से प्लीज स्विच ऑन योर माइक। शायद उनको आवाज नहीं आ रही, ओके, वॉट एवर इट मे बी। पिकड़े सर कुछ प्रॉब्लम्स डाउट्स तो आप बता सकते हो। नहीं, नथिंग स्पेसिफिक। ओके सर, डॉक्टर पिकड़े जी ने एक रिक्वेस्ट किया था कि सर शिरढोण में, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे आके ऑब्जर्वेशन हो सकता है, बट मैं स्ट्रिक्टली जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है उनको फॉलो करता हूँ। तो नॉर्मली जैसे ही लॉकडाउन की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, थोड़ा हम सेफ सिक्योर हो जाएंगे कोरोना क्राइसिस से, तो वी विल कॉल यू अप, बट तब तक मुझे लगता है बारिश 100% आएगी, तो आप एक पकड़ के चलिए। आफ्टर द रेनी सीजन, इफ कोरोना गोज आउट, then we will surely meet at Shirdon.
तब तक आप अपने तरीके से करते रहिए। यू हैव एनी डाउट्स, यूज दी स्टेलेरियम सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं। और आपको स्पेसिफिक डाउट है तो प्लीज मुझे भी आप व्हाट्सएप से लिख के आपके डाउट्स भेज सकते हैं। तो फिर आज के लिए चाहिए तो हम यही रुक जाते हैं। बाकी सब लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप सिंसियरली काम करते रहिए एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, नहीं तो ये लेक्चर आपको इतना मदद नहीं कर। सर आई हैव टेलीस्कोप सर, बट नथिंग इज सीन थ्रू इट। टेलीस्कोप को सेटअप करना पड़ता है। श्लोक माइक ऑन करो। Yes, sir. आपके पास जो टेलीस्कोप है उसका डायमीटर कितना है? Sir, sir, मैं बोलता हूँ सर। नहीं नहीं, मैंने अभी तक मेजर नहीं किया, ये बोलना चाह रहे हो। उसमें इतना टाइम क्यों ले रहे हो? Diameter of my telescope, six, अरे रहने दो यार। Sir, 4 inches है। 4 इंचेस मतलब okay। अभी ये रिफ्रैक्टर है रिफ्लेक्टर है? सर रिफ्रैक्टर है आई थिंक। रिफ्रैक्टर रिफ्लेक्टर है रिफ्लेक्टर है। नहीं, सुनो मुझे बताओ, ऊपर से तुम नीचे से दूसरे एंड से देखते हो कि साइड से देखते हो? साइड से सर। तो साइड से हमेशा रिफ्लेक्टर होता है, न्यूटोनियन बोलते हैं, मिरर रहता है उसके अंदर। रिफ्रैक्टर हाँ के सर। अंदर लेंस रहता है, कॉन्वेक्स लेंस, जो हाँ गैलीलियो ने यूज किया था। हाँ सर, वही रिफ्लेक्टर ही है। हाँ ठीक है, अभी सब सीन में आ गए, मम्मी भी आ गई, दादाजी भी आ गए, है ना। तो अभी एक काम करेंगे, आपका टेलीस्कोप क्यों नहीं दिखता है, तो उसका बहुत दिन से घर पे पड़ा हुआ है क्या? हाँ सर, एक तो साल हो अब गया आई गेस। हाँ तो नहीं क्या ना, उसका जो लाइन इन लाइन अरेंजमेंट है ना, कि से जो रिफ्लेक्ट हुआ वो बीच में जो रिफ्लेक्टिंग मिरर है उधर से रिफ्लेक्ट होके आपके आईपीस में आना चाहिए 45 डिग्री वाले, वो नहीं आ रहा होगा इसलिए नहीं दिख रहा होगा। या फिर प्रोबेबली यू डोंट नो, क्योंकि नॉर्मली टेलीस्कोप को वो काम कर रहा है कि नहीं, इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आप घर के बालकनी में लगा के आसपास का बहुत दूर का, मतलब ज्यादा दूर का नहीं, 4 इंच का है तो आप पकड़ लो, आप एक तकरीबन 100 भी नहीं, एक 50 मीटर की दूरी पे या 30 मीटर 40 मीटर की दूरी पे कोई पेड़ है, उस पे कोई बैठा है पंछी वगैरह, तो वो या ब्रांच है उसको आप देखोगे और वो दिख पाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। अभी आप ये नहीं कर पा रहे हो, देन समथिंग आई हैव टू विजिट यू और प्रोबेबली यू हैव टू गेट योर टेलीस्कोप टू माय। यस सर। देखते हैं कैसा होता है। बट इस दरमियान आप रिफ्लेक्टर टेलीस्कोप के वीडियोस, उसका ट्रबल शूटिंग जरा गूगल पे यूट्यूब पे देख लो। आप वैसे ही इतना टाइम पास करते हो सब बच्चे लोग सब लोग, तो यू कैन यूज इट। जो प्रोफेशनल सर्विस में नहीं है उन लोगों को कहीं ना कहीं जो खुद को प्रॉब्लम आया किसी सिस्टम के साथ, किसी डिवाइस के साथ, किसी इक्विपमेंट के साथ, वो यूट्यूब पे बैठ के या इंटरनेट पे बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, अनुभव भी बढ़ेगा, एंड योर कॉन्फिडेंस लेवल विल आल्सो बूस्ट। तो ये थोड़ा आप करने की कोशिश करिए, नहीं तो मैं जैसे ही मिलूंगा तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वी विल एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दैट प्रॉब्लम, और इन केस पॉसिबल विल ट्राई टू सॉर्ट और एड्रेस दैट प्रॉब्लम टू फिनिश इट ऑफ। ओके, चलो आज रुक जाते हैं। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए श्लोक, प्लीज। यू वांट टू आस्क समथिंग श्लोक? नो सर। ओके, देन वी विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, गुड नाइट। चलो चलो, प्लीज लीव द क्लास।